हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था दिल्ली का सबसे बड़ा भजन क्लबिंग इवेंट. And this video is all about how this went down. And what is going to come forward. So, starting from me, एक दिन ऑफिस में बैठे बैठे I was looking at all the news articles where people were going to भजन jamming sessions, जहाँ पे म्यूजिकल गानों के बीचों बीच कुछ भगवान जी के गाने गाए जा रहे थे and everyone was enjoying that a lot and it was coming in trend धीरे धीरे. So I thought क्यों ना let's announce an event and see how people respond. कर लेंगे 100-150 लोगों का कोई इवेंट होगा, अगर होगा तो अच्छे से किसी कैफे में जाके we'll have some sort of an event around that area. So I didn't announce the venue क्योंकि I didn't know कितने लोग आएंगे, उस हिसाब से प्लान करना था. We didn't announce the artist, वो तो हमने end तक नहीं करा था announce till the day because we wanted people to come for the experience. But we started with a number of 100-150. चलते हाँ. No, but this idea actually wasn't just born out of an office. You remember that convention we went to? हाँ, so basically yeah. एक सेकंड को यार ऐसा नहीं है कि एकदम से इवेंट आया. जैसे वर्षिका mentioned earlier, during Diwali also I wanted to do something public, but it was more towards a stage play, some sort of a performance, something around that area. A take on something very conventional that we already have been seeing in our lives, but we couldn't go through with it क्योंकि time बहुत कम था. And it was a very very big project which should have ideally started a year ago जो हमारे पास जिसके लिए हम एक महीने में सोच रहे थे. Exactly. Although this one also was executed in a month. Exactly a month. So normal convention में हम एक गए हुए थे, वहाँ मेरा random convention, हमारा कोई काम नहीं था उस convention में, हम for some reason गए हुए थे and we were just walking through the aisles to see क्या है क्या नहीं है, and that's when this conversation happened. कि कुछ करते हैं, then बैठे बैठे वो कुछ किया. We announced, जैसे मैंने पहले बताया. Target was 100-150 without even announcing the venue. When we saw 400 plus tickets being sold, yeah, we first ran and then started announcing looking for a venue. I think we were frantically looking for venues. The craziest thing was off season, according to us, it was an off season, but सारे venues sold out थे. And we were like, अब करेंगे क्या, कैसे, कुछ जुगाड़ करके something or the other we came up with a venue and it was the most frantic 1 week 10 days and we didn't have a venue. 20 दिन में event Actually था. हुआ क्या था कि we had a venue in mind. हमने जैसी उसकी बुकिंग डाली, उसके एक घंटे पहले किसी और ने उसकी बुकिंग डाल दी. Which I think is divine intervention. But it was divine intervention. But it's good कि हम लोगों ने वो venue वहाँ choose पे नहीं नहीं करा. किया and we chose another venue. Yeah. We did it at Indira Gandhi Sports Complex. And करते करते when our ads were all over the place, people started to respond. Yeah. तो कई news articles ने भी चीजें cover करी. कुछ ने हमसे पूछा था, one news article उन्होंने खुद से ही मेंशन कर दिया कि 2000 से ज्यादा लोग आ रहे हैं. हाँ. हमने टारगेट एक्सपेक्टेड किया था कि 1100 तक. अब हमें लग रहा था कि लोग आ जाएंगे. At that time, so it was very funny कि मतलब जब सुबह उठे कि 2000 कर दिया, चलो अच्छा है, मैनिफेस्टेशन कह लो या कुछ भी. By the day the event happened, there were more than 3000 people on ground during the event. So एक experience की शुरुआत वहाँ से हुई. And इस experience में there were a lot of things that were going on. Artist ढूंढना very difficult task क्योंकि we wanted to, जब हमें पता लगे कि अच्छा this crowd is coming, our scale kept changing. Every 2 days our scale was changing. क्योंकि expectation उस तरीके से match होनी जरूरी है. जो लोग आ रहे हैं, they should feel that they're coming for something larger big. than themselves. Yeah, and for sure. दूसरा there was also in our mind कि we want to do something different. हम नहीं चाहते थे कि कोई भजन संध्या की तरह हो, कोई जागरण की तरह लगे. Exactly. People should have a good experience. जो मेरी एज के लोग भी हों, जो सारे Gen Zs जो कहते हैं, उनके अलावा सारी families, everyone comes and enjoys such a thing. हाँ, and ऐसा नहीं है कि it has just been a positive response. Largely positive, I would say 99% response जो हमें मिला इसके लिए वो positive था. But we've also got negative comments about it. So actually क्या है, the event everyone thinks executing an event free में हो जाता है. Yeah. So
हमें भी लगा था खर्चा कम आएगा, बट बाय द टाइम वी वेंट ऑन एग्जीक्यूटिंग, उस खर्चे को देखकर हमें हंसी आ रही हाँ थी कि बहुत ज्यादा, मतलब इन लैक्स एंड लैक्स एक्सपेंस, एंड इट जस्ट केप्ट राइजिंग, स्पॉन्सर्स वो खत्म ही नहीं हो रहा था। हम लोग ट्राई कर रहे पर 1 महीने का टाइम है, तो वेरी लिमिटेड एंड ऑल द ब्रांड्स टोल्ड अस भाई ऐसे थोड़े होता है, मार्केटिंग बजट्स होते हैं, हम अब हमारा एग्जॉस्ट हो चुका है व्हाटएवर। सो वो चीज थी नहीं, बट हम लोगों ने हाथ में कोई चीज ले ली, व्हेन देयर आर 1000+ पीपल, वी एग्जीक्यूटेड इट ऑन आवर लेवल। उसके बाद लोगों ने रिस्पॉन्ड किया कि भाई आप लोग स्पिरिचुअलिटी के नाम पे लूट रहे हो, ये चीज कर रहे हो, वो चीज कर रहे हो, बिजनेस बना दिया है। मैं लोगों को ये समझाते समझाते थक गया कि इफ यू सी, कोई भी अगर आपका जो ट्रेडिशनल जागरण हो रहा है, रामलीला हो रही है, सब कुछ हो रही है, वो लोग करते हैं चंदा इकट्ठा करके। हाँ। अब हम वो वाला काम ही नहीं कर रहे कि चंदा वाला, खाना पूर्ति वाला काम करते हैं। Now the people that are coming to the event, they are paying for the event in the form of tickets, and sponsors थे नहीं, we tried जो भी थोड़े बहुत थे उनके साथ, and why we need sponsors is कि ऐसे event fund हो सके। Even the next event that we are planning, that is even larger scale, उसमें भी पूरा खर्चा आता है। Not even larger, it is 10x larger than what we did. ऐसा वर्ल्ड में कभी हुआ ही नहीं है। Exactly. So for our next event we are planning a devotional music festival जो सनातन धर्म को प्रमोट करता है। सारी चीजें होती है, डिफरेंट चीजें होती है, बट कोई भी सनातन धर्म को प्रमोट करते हुए डेडिकेटेड फेस्टिवल नहीं था। We also saw from the response कि कुछ लोगों को फास्ट गाने पसंद होते हैं, डांसिंग वाले, तो कुछ लोगों को स्लो गाने पसंद होते हैं। उनको थोड़ा सा बैठ कर एंजॉय करने का मन है, एंड we thought then कि why not give each segment what they want. कुछ लोग अगर स्लो पसंद करते हैं तो उनके लिए वो भी होना चाहिए, because it is their form of devotion. कुछ लोगों को फास्ट अपबीट चीजें पसंद है तो उनके लिए वो भी होना चाहिए, and that is where the idea of this festival came about. So even when we talk about execution, क्योंकि I am working on सनातन जर्नी, तो on ground चीजें I have very limited idea about. तो our family friend अक्षय भैया, he supported from the start. Through and through. मतलब I think वो उनके बिना नहीं हो सकता था ये उन्होंने event. ये चीज नहीं कही थी कि भाई मैं ये चार्ज करूंगा। हमने जब पूछा भी तो उन्होंने मना ही कर दिया कि भाई चीज करनी है, साथ में करनी है, अच्छे से करेंगे, विदाउट इवन थिंकिंग कि हम लोग क्या लेके आएंगे। एंड दैट इज द काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट वी वांटेड विद पीपल की अच्छा चीजें एग्जीक्यूट हो, उसके बाद काम अच्छा हो जाता है, बढ़ जाता है। And I think the time that we spent on it, he always spent a little more. अगर हम X कर रहे थे तो वो X+2 कर रहे थे, मतलब in that sense of him being involved in it, it was very very important and it was very very nice of him to do it in this way. So अब बात आती है कि जो हमने बताया था कि लोगों का रिस्पॉन्स ये होता है कि भाई आप टिकट चार्ज कर रहे हो, कैसे कर सकते हो, आपकी टिकट बड़ी महंगी है। मैं अभी भी समझाना चाहता हूँ, टिकट महंगी इसलिए होती है या प्राइस इसलिए होता है क्योंकि हम घर घर जाके चंदा नहीं इकट्ठा कर रहे हैं, हम जागरण नहीं कर रहे हैं। एंड टू बी एबल टू एग्जीक्यूट सच अ बिग थिंग, कोई नई चीज के लिए वी नीड फंड्स, एंड उसके लिए टिकटिंग इज इम्पोर्टेंट, उसके लिए टू हैव दैट एक्सपीरियंस। आप नहीं पूछते अगर आप किसी म्यूजिकल आर्टिस्ट के कॉन्सर्ट में जाते हो कि भाई इनकी 15 लाख रुपए की टेबल क्यों है, हम तो 15 लाख रुपए नहीं मांग रहे। आप किसी म्यूजिकल आर्टिस्ट के पास, मतलब आप किसी और को जज नहीं करते जब अल्कोहल पीनी होती है कि भाई अच्छा इतने की टेबल है, इसके साथ इतनी बियर मिलेंगी, इतनी ये मिलेंगी। पर जब डिवोशनल कॉन्सर्ट होता है तो ये सवाल आ जाता है कि भाई महंगी है, स्पिरिचुअलिटी ऐसी नहीं होनी चाहिए, चीजें वैसी नहीं होनी चाहिए। And there's nothing wrong with it. हाँ, everyone has different ways of enjoying. People go to concerts, we go to concerts. It is very very fun, but we tried to bring something that we thought होना चाहिए। मतलब at one point I was like, अच्छा devotional भी तो कुछ concert हो सकता है, because that is the kind of spirituality that I also enjoy. थोड़ा सा dancing, भगवान के गानों पे थोड़ा सा वैसे vibe करना, I really enjoy it. Both of us actually really enjoy it, and we thought क्यों नहीं ऐसा भी कुछ होना चाहिए. So this is a new concept. Obviously some people are going to take it very well, some people are not going to take it very well, and which is fine. हर किसी के अपने अपने opinions होते हैं, and everyone should have their own opinions. But I just think कि मतलब you can be a little sweet about it, यार. But leaving that aside, we have had a very good response. Amazing response. News coverage we got organically. Platforms like BBC, NBT, Aaj Tak, The Print, so many more, and
उन प्लेटफॉर्म में जो उन लोगों ने कंटेंट बनाया, थ्रू दैट वी वर एबल टू गेट ऑडियंसेस रिएक्शन कि अच्छा सब इंजॉय करके गए, एवरीवन हैड अ गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस कभी पहले हुआ ही नहीं था। एंड अगर हमें हमारे इवेंट के थ्रू और 50 लोग इस चीज को शुरू करते तो वी आर वेरी हैप्पी कि वी आर एबल टू स्टार्ट समथिंग व्हिच हैज नेवर एग्जिस्टेड। एंड बट अगेन वी यूज द टर्म भजन क्लबिंग अ लॉट, तो हमारे बाद सब लोग भजन क्लबिंग यूज करना हमने शुरू कर दिया। Leaving our old event now back, now we are planning an even bigger event on 1st March. हम लोग इसको, क्योंकि होली के पास है, 4th मार्च को होली है, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक संडे को होली से जस्ट पहले एवरीवन कैन कम ऑन ग्राउंड, एंजॉय अ फुल डे एक्सपीरियंस। लास्ट टाइम हमारा 2-2.5 घंटे का इवेंट था, 6 बजे एंट्री खुली थी। इस बार हम लोग दोपहर में ही एंट्री खोल देंगे ताकि लोग आ सकें। मल्टीपल आर्टिस्ट का लाइनअप होगा जो धीरे धीरे करके अनाउंस मे बी जब ये वीडियो आउट होगी हो चुका होगा। एंड लोकेशन हम लोग बहुत एक आइडियल इस बार हमने देखी है पहले से सोच के कि लोगों का रिस्पांस किस तरीके से आया था। हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार और बहुत बहुत अच्छा और रिस्पांस आए। जो भी छोटी मोटी गलतियां हमारे फर्स्ट इवेंट में हुई, वी ट्राइड टू नॉट रिपीट दोज एंड मेड श्योर कि दिस is an even bigger, better, larger than life experience for all of us. Whoever's coming in, us, doing it, it's bigger and better. So we are trying कि in a single ticket लोगों को एक slow experience भी मिल पाए, एक fast experience भी मिल पाए, different तरीके का खाने एक्सपीरियंस कर पाए। एक स्पेशल राधा रानी जी का स्टॉल प्लान कर रहे हैं ताकि लोग मेकओवर करवा सके, क्योंकि कभी कभी टाइम मिलता है तैयार होने का। Which is by the way, let me just do a plug-in, which is by my brand Sheer Beauty. So we're going to be there doing makeovers for all of you. So many different things that are being planned. हम लोगों का कंपैरिजन सीधा टुमारोलैंड से है और हम लोग उसको अचीव आप लोगों के साथ ही कर सकते हैं। Yes. और आपको उसके लिए कुछ ज्यादा करना नहीं है, बस इवेंट में आना है। जब हमें पता लगेगा कि अच्छा इतने सारे लोग हमारी एक और बड़ी कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए वहाँ पे खड़े हैं। इट इज नॉट जस्ट अबाउट पीपल फ्रॉम दिल्ली, अब ऑल ओवर इंडिया से। आई रिमेम्बर सो मेनी पीपल गोइंग स्पेशली टू मुंबई फॉर अ लोलापलूजा इवेंट। एक डिवोशनल इवेंट के लिए देखा जाएगा कि अच्छा कौन कौन इंडिया के किस किस कोने से आ सकते हैं, एक्चुअली उसका एक पार्ट बन सकते हैं। जब एक अल्कोहलिक इवेंट के लिए बाहर के आर्टिस्ट के लिए हम लोग इतना ज़्यादा ट्रैवल करके जा सकते हैं, हम इतनी चीज़ें कर सकते हैं, क्या हम एक डिवोशनल इवेंट के लिए जिसमें माइंड यू हम लोग सेलिब्रिटी आर्टिस्ट लेके आने वाले हैं जो सालों से ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, लोगों ने उनका काम इंजॉय करा है, और हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि उस लेवल का हम लोग एक कॉन्सर्ट आप लोगों को ऑफर कर सके। द ओनली थिंग इज वी नीड यू टू बी देयर and let us know that this is something worth taking forward, because as anything new when it starts there is resistance, there is थोड़ा सा लोगों के मन में होता है कि क्या है, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। This is something that we want to start just out of pure will to do something towards our religion and to connect with our spirituality better. और हमें पता है हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि हमने 21st को भी देखा, जो लोग चाहते हैं ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस हो या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर वो आकर they can just enjoy themselves, and that is what we are trying to put forward. हमें इस बार भी नहीं पता कि स्पॉन्सर्स आएंगे या नहीं आएंगे, हमने अनाउंस कर दिया क्योंकि हमारे को करना था। Irrespective, इवेंट तो हो रहा है, हमें करना था, बहुत लार्ज स्केल पे करना था, सब कुछ देखा जाएगा। What we want is to be able to offer an experience which has never happened before in the entire world, एक डिवोशनल म्यूजिक फेस्टिवल फॉर प्रमोटिंग सनातन धर्म। आज तक नहीं हुआ, अब होने जा रहा है 1st मार्च को। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के, चाहे दिन का 1 घंटा ही निकाल के, सुबह फ्री हो सुबह आ जाना, रात को फ्री हो रात को आ जाना, पूरे दिन फ्री हो तो वहीं पे रहना, एक अनवाइंडिंग का आपके लिए एक डे बन जाएगा। बट बी देयर टू सपोर्ट सनातन धर्म, आई वुड से, एंड जस्ट टू सी हाउ फन something else can also be. See you there. See you there.